Bismillahirrahmanirrahim. I'm Usman Tariq Bheti, and I will teach you organizational behavior in this particular semester. Uh, we will learn all the practical and theoretical aspects of organizational behavior. First of all, I hope that you are absolutely doing fine, you and your families, in this COVID pandemic, because it is getting too much serious. So please follow the SOPs. Do wear the mask when you are moving out, because your health is pretty much important for us, because you are our future, and there must not be any risk, there must not be any kind of negligence on your health. So I pray that all of you must be safe in this COVID pandemic. I was not expecting that our session will start in this particular way. As the universities were open, I was hoping that we will meet in classroom with a much more communicative and interactive manner, where we can enjoy all the practical activities which we have in organizational behavior, especially in my course. So you guys can enjoy a lot and learn a lot when we will be there in classroom environment. But no problem at all. It's my responsibility to make it interesting for you guys, even in this online mechanism, and we will definitely do pretty amazing in this online interaction too. So let's hope that our 4 months will be just like a interesting roller coaster, and we will enjoy a lot in this particular journey. As far as my introduction is concerned, my relationship with Punjab University has been established since 2009, starting as a student, and as a teacher I joined it in 2015. Basically, I'm a businessman, but I'm here in Punjab University just for the sake of my passion and for something returning to the society, and especially the academic community in multiple perspectives, especially from the research perspective, and secondly from the very much my expertise in organizational behavior and theory, and I'm returning back to you young graduates in the form of practical exposure. So I had joined Punjab University in 2015. You guys can interact me in three particular phases in your journey to in PUJC, especially in the first in your BBA, while studying basically organizational behavior, and then in MBA, when you will come, organization theory will be there, and ultimately your thesis will be there. I will also assist you in multiple manners. So these three interactions can be expected. There can be a lot more interactions, very fruitful ones, and very practical ones. If you need any sort of guidance regarding your business ideas, your business exposures, or you can say your opportunities, and you can say what ideas are in your mind, I will always be there to help you out for those particular reasons. As far as my organizational experience is concerned, I belong from five organizations in Gujranwala city. First of all, coming towards my family background, we own top five, one of the top five home appliances industry, named as Super Indus Electrical Industry, Indus Home Appliances basically. Secondly, I am also linked with my especially my father's business of mold boxes. Thirdly, I have my own very personal ventures named as a research company, researchtutor.com, and then a writing firm named as writerspot basically. And currently we have started a new venture, One Down Sports Apparel. So you can say that I am an organizational person, basically as myself, because due to these five organizations, and all of these five are completely versatile. The two which I am talking in the start were completely manufacturing concerns. The later on two were, you can say, service oriented firms, as these are completely oriented around the research. And the last one Down Sports Apparel, that is kind of export or trade company, plus manufacturing, but its major business model surrounds around the, you can say, export and trade, and not totally based on manufacturing. So this is my personal business experience. What is the reason behind telling you all these things? The reason behind telling you all these things, that you must be ready in the very start, that in this particular fourth semester, especially in organizational behavior, you are not gonna learn only from the book. You're going to have the exposure of all kinds from all these five business domains, not only these five business domains, from the rest of the businesses operating in the world, and in the form of case studies, in the form of multiple examples, even in the form of movies, which I will suggest you to watch weekly in this particular 4 months. So there will be a lot of fun in this particular semester.
So that was my introduction here. I will be really happy to know you guys in more detail while will be in the class, inshallah, after midterm or before midterm, whenever the university will open, about your personalities in a very interesting manner. So that will be I will be keenly waiting for that, to know you guys too. Coming towards our specific course, organizational behavior, as I have already taught you that we will learn it from the practical perspective. We are not gonna just follow the book, because books will be for me. Your course contents will be completely based on what I will say here in the lectures or YouTube or in the class. No slides will be there, no notes will be there. You have to take notes from these lectures, and only those notes can take part in the examination. The paper will be completely practical. There will be no theoretical question in the examination hall, and that kind of paper can be very much interesting if your concepts are clear, if you have given a keen time to all these lectures, but can be made difficult for you if you haven't given much attention to these particular lectures. सो अच्छा होगा कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से नोट करें, इनको अच्छे तरीके से समझें, अपनी क्यूरीज़ को शेयर करें, अपनी क्यूरीज़ की तमाम डिटेल्स को पूछें, और हम इंशाल्लाह अच्छे मैनर में चलेंगे. हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को. दो बुक्स होंगी, वो दो बुक्स आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बट देयर इज़ नो लाइबिलिटी दैट यू रीड दोज टू बुक्स. मैं उन दो बुक्स को अच्छे तरीके से कवर करूंगा इन 32 लेक्चर्स के अंदर. उनमें से जो फर्स्ट बुक है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर स्पेसिफिक है. उस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बिहेवियर्स को स्टडी किया गया हुआ है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम डाइवर्सिटी, देयर विल बी परसेप्शन, इमोशंस एंड मूड्स, लीडरशिप, ग्रुप फॉर्मेशन. These are different individual level or group level phenomena. Then हम organizational level phenomena पे चले जाएंगे behavior के, like politics है, like culture है, like strategy है, like risk है. हम इन तमाम elements को अच्छे तरीके से discuss करेंगे theoretical point of view से. Then there is another book in which we will incorporate different kind of theories. मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं जिनका अभी मैंने नाम दिया है, इनकी बैकग्राउंड पे डिफरेंट थ्योरीज एक्ट कर रही होती हैं, डिफरेंट थ्योरीज अपना रोल प्ले कर रही होती हैं. लाइक बहुत से पॉपुलर थ्योरीज में से जो आपने नाम सुने होंगे, सबसे पहले हेनरी फॉयल का नाम सुना होगा आपने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का नाम सुना होगा आपने, मैक्स वेबर का नाम सुना होगा. few names can be strange for you, like Mary Parker Follett, डिमोनी. सो दीज नेम विल बी कमिंग टू योर अटेंशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि हम अपने उन थ्योरेटिकल कंसर्न्स के साथ किसी इस तरह के थ्योरीज को ज़रूर अटैच किया करेंगे हर एक लेक्चर के अंदर, ताकि आपको पता चले कि जिस चीज़ को हम स्टडी करें इनकी बैकग्राउंड के पीछे थ्योरी कौन सी थी, और उस तरीके से हम इस चीज़ को कवर करेंगे. तो ये तो होगा हमारे कोर्स का एक थ्योरेटिकल पोर्शन. हम लेट्स सपोज हम 16 लेक्चर्स इस पर्टिकुलर कंसर्न को देंगे. जो हमारे दूसरे 16 लेक्चर्स होंगे जो इन बिटवीन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले 16 लेक्चर में थ्योरी और 16 लेक्चर्स टोटली प्रैक्टिकल. जो ये दूसरे हमारे 16 लेक्चर जो इन बिटवीन आते रहेंगे, उनके अंदर आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा. क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको 10 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने में और उनमें बिहेव करने के मैनर सिखाए जाएंगे. 10 तरह की स्किल्स आपके अंदर जनरेट की जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च स्किल, starting from the behaving in a manufacturing concern, starting from the behaving in a designing firm, starting from a behaving in an apparel firm, starting from behaving in a content writing, starting in behaving from how you can be exporter on Amazon or eBay. So we will choose 10 types of skill, and these 10 types of skill will be communicated to you in a very interactive manner, ताकि आपके इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आपके अंदर वो 10 स्किल्स मौजूद हों कि उन 10 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है, उनको कैसे ऑपरेट करना है, आपको ये आना चाहिए. समहाउ इट इज़ सीन कि ये ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते हैं. हमारा प्राइमरी मोटिव उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करना नहीं होएगा. हमारा प्राइमरी मोटिव उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करने के लिए जो बेसिक स्किल्स हैं उनको सीखने की तरफ होगा, ताकि आपके स्किल बैंक में इजाफा हो सके. क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट यू विल बी ग्रेजुएटेड इन आफ्टर 6 or 8 months बेसिकली. सो आफ्टरवर्ड्स यू विल गो इन द जॉब मार्केट और इन द बिजनेस मार्केट. यू विल सी दैट डिग्री कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द स्किल्स आर मोर डिमांडेड राइट नाउ. तो हम 10 तरह की स्किल्स आपके अंदर जनरेट करना चाहते हैं इस एक कोर्स के अंदर. नाउ इट्स टोटली अप टू यू. I will give my best. I will try to give my best. This is a very unique formation which we haven't opted for the previous 4 years. This experiment or this kind of learning strategy is gonna be opted just for you in this particular semester. This will be a test case.
So I want you to participate in this as much as you can, because none of the person outside from this university will teach you these skills for free. But in this particular semester, we are gonna know that how 10 skills can make your organizational behavior effective in 10 different kind of sectors, and that will be really beneficial for you. So this will be the practical part of our lectures. 16 lectures will be for the theoretical things, and 16 lectures will be dedicated for the all these practical things which I have just talked about. Okay, what else? डेफिनेटली देयर विल बी प्रोजेक्ट्स. नॉर्मली जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का होता है, जिसमें हम एक सेक्टर चूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक इशू चूज़ करते हैं, और हम उस सेक्टर से जाकर लोगों से इंटरव्यू करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन अंदर ऐड करते हैं, क्रिएटिव फिनोमिनाज ऐड करते हैं, और एक बड़ी मज़े की 15 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं. अगर आप फेसबुक पे जाएंगे और वहाँ पे उस्मान तारिक भट्टी टाइप करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पे चले जाएंगे. उसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो आपके सीनियर्स की डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी. आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी इसलिए करवाई जाती है ताकि आपके ग्रुप वर्किंग को इम्प्रूव किया जा सके, कैमरा फियर आपका रिड्यूस किया जा सके, एक ऑडिट की एबिलिटी आपके अंदर जनरेट की जा सके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरेक्शन कैसे करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट और उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं. क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना, अगर आपने अच्छा लिखना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है, अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना पड़ता है, तो अच्छा काम करना है तो अच्छा काम देखना पड़ता है. तो इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट्री की एक्टिविटी ज़रूर रखा करते थे. बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ एंड इवन आफ्टरवर्ड्स आई डोंट थिंक द SOPs will allow us to visit those organizations functionally. सो वट आई एम प्लानिंग टू डू दोज थिंग्स कि हम वही जो इश्यूज आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके जाने थे, वो इश्यूज हम आप लोग ही उन ऑर्गेनाइजेशंस के एंटरप्रेन्योर्स के पास, ऑनर्स के पास वर्चुअली लेके जाएंगे, और वर्चुअली हम एक 20 से 25 मिनट के अंदर उसके ऊपर कम्युनिकेट करेंगे. तो हमारे लेक्चर्स के साथ साथ वो भी लेक्चर्स का पार्ट बन जाएंगे. सो हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे. आपके 6 के ग्रुप बना के आई थिंक सो कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 60 के करीब होगी. सो वी विल हैव ऑलमोस्ट 10 ग्रुप्स इन अ सिंगल क्लास, और हम कोशिश करेंगे जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इश्यूज हैं वो एक एक इशू असाइन करें. आप उसके रेलिवेंट सेक्टर या इंडस्ट्री चूज़ करें, वहाँ से डिफरेंट एक्सपर्ट्स को वर्चुअल सेशन के अंदर इन्वाइट करें, और वर्चुअल सेशन के अंदर आकर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके हमारे लिए यहाँ पे मौजूद रखें, एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर कोर्स टू. सो वो जो डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट था हम उसको इस तरीके से कवर करेंगे कि उसको हम वर्चुअल जो वेबिनार्स हैं उसके थ्रू पूरा कर लेंगे. सुनने में आपको ये चीज़ कॉम्प्लिकेट लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं है. लेट्स सपोज आई एम द ओनर ऑफ researchtutor.com. यू आर अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन्स. आपको टॉपिक दिया गया है परसेप्शन एरर का, कि जनाब आपने देखना है कि जो रिसर्च फर्म्स हैं वहाँ पे जो परसेप्शन एरर्स हैं वो किस तरह से प्रिवेल करते हैं. आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया है कि सर आपकी एक रिसर्च फर्म है और हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी फर्म के अंदर या डिफरेंट रिसर्च फर्म्स के अंदर परसेप्शन एरर्स किस तरह से मौजूद होते हैं और किस तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को हॉन्ट कर सकते हैं. सो आई विल डेफिनेटली से यू के बच्चा टाइम नहीं है, ऐसा है, बिजी है, ऐसा स्केड्यूल है. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर निगोशिएटिंग स्किल्स एट हाउ यू मेक योर रिस्पॉन्डेंट कन्वीनियंट. कि सर आपने रिकॉर्ड करना है एक लेक्चर 20 मिनट का अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके जस्ट हमारे साथ शेयर कर देना है, हम आपके पास USB से रिसीव करने आ जाएंगे. हम इवन अपना कैमरा मटेरियल वहाँ पर भेज सकते हैं ताकि हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर लें अगर आप खुद रिकॉर्ड करने में उसमें थोड़े से हेजिटेंट हैं. सो वी हैव टू प्रेजेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. वंस दैट पर्सन विल बी एग्री टू record his or her input, then we will take his or her input and we'll share with our fellows and with me especially in a very organized way. So इस तरीके से हम वो चीज़ को कवर करेंगे. प्रैक्टिकल एक्सपोजर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का लेके आएंगे. I will be teaching the 4 sections, so we will have basically 40 groups here, and हम 40 डिफरेंट इश्यूज़ के साथ उन लोगों के पास जाएंगे और उन 40 इश्यूज़ के ऊपर वो सारा का सारा फीडबैक लेके आएंगे. तो ये हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होगा इस कोर्स के अंदर. जो हमारा सेकंड मेजर प्रैक्टिकल एक्टिविटी साथ साथ चल रही होती है वो मूवीज़ की होती है. आपको हर वीक देखने के लिए एक मूवी दी जाएगी, आप वीकेंड नाइट पे वो मूवी देखेंगे. डेफिनेटली वीकेंड नाइट हमने इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए रखी होती है, इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए रखी होती है. तो जो मूवीज़ आपको दी जाएंगी कोशिश किया जाएगा बोरिंग मूवीज़ ना हो, लेकिन डेफिनेटली उनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या बिजनेस के साथ होगा. लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं एक मूवी जो नॉर्मली एग्ज़ाम मूवी का नाम है, 2008 की मूवी एग्ज़ाम मूवी होगी. उसके बाद सोशल नेटवर्क है, फेसबुक के ऊपर मूवी है. द फाउंडर है, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर मूवी है. इसी तरह से डेविल वियर्स प्राडा है जो कि प्राडा ब्रांड के ऊपर एक मूवी है.
मूविंग ऑन, डिफरेंट तरह की मूवीज़ अंदर आती जाएंगी। सिरप मूवी है जो एक बेवरेज कंपनी के ऊपर बनी हुई है। डिफरेंट तरह की मूवीज़ आपको रेकमेंड की जाएंगी और उन मूवीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर अपने लेक्चर्स के ऊपर। और क्योंकि तमाम के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब रिकॉर्डेड नहीं होंगे, अंदर कुछ लेक्चर्स हम इंटरेक्टिव मैनर में भी रखेंगे, फिर कुछ हम कंसल्टेशन सेशन भी रखेंगे। सो इट मीन्स कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस इन द प्रैक्टिकल सेशंस टू। सो ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट में दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। इसके भी मार्क्स होंगे, जितने आप उन मूवीज़ को कीनली देखें, उनको इंटरप्रेट करेंगे और उनके रिगार्डिंग अपनी डिस्कशन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे, और वहाँ पे भी आपकी वैल्यूएशन होगी। जो थर्ड मेजर आपका प्रोजेक्ट होएगा इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर, वो एक सॉर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च होगी, ठीक है ना। एक्शन रिसर्च हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिगार्डिंग हम कंडक्ट करेंगे। एक्शन रिसर्च बेसिकली not only focused on the write-up, but it depends upon observing an organization from a very close perspective, and then finding out a problem, and then finding out a practical solution for that organization. So we as a student must give something back to that organization, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया तो हम उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फाइनलाइज येट, आई हैव टू सी द थिंग्स ऑन द कोविड परस्पेक्टिव टू। सो जो रिमेनिंग दो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 4 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें मैंने कम्युनिकेट कर दी, तीसरी चीज़ ये एक्शन वाली थी, लेकिन ये फाइनल नहीं है। जो रिमेनिंग 2 थिंग्स हैं, आई विल सी देम इन द कोविड परस्पेक्टिव, एंड देन अल्टीमेटली हम डिसाइड करेंगे कि एदर वी आर गोइंग सॉरी कि हम उसके साथ जा रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, हम उसके अल्टरनेटिव में कोई और प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे। नॉर्मली जो हमारा 4th प्रोजेक्ट होता है वो फाइंड योर ओन क्योर होता है। जिस तरह हर पेशेंट को एक तरह की मेडिसिन नहीं दी जा सकती, इसी तरह से हर स्टूडेंट को एक तरह का प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता। जिस तरह पेशेंट की डिफरेंट नीड होती है, लाइक एक को कफ है तो उसको डिफरेंट तरह का सिरप, हाइड्रोलिन देना पड़ेगा, एक्टिफाइड पी देना पड़ेगा, डिफरेंट तरह की चीज़ देनी पड़ेगी। एक को अगर स्टमक का इशू है तो उसको टेफ 20 वगैरह रिकमेंड करना पड़ेगा। एक को अगर एंग्जाइटी वगैरह का इशू है तो उसको एल्पोजियम टाइप समथिंग रिकमेंड करना पड़ेगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर बेसिकली लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर जब आप डिफरेंट तरह की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको हाफ डॉक्टर बन ही जाते हो। सो एनी हाउ आप अपना प्रोजेक्ट खुद चूज़ कर सकते हो। 4th वाला, आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को कवर करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को कवर करने के लिए, अपने आप को कोई चैलेंज देने के लिए अपना प्रोजेक्ट खुद चूज़ करेंगे। वो प्रोजेक्ट चूज़ करने की इजाज़त आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप वाकई विलिंग होंगे किसी चैलेंज को लेने के लिए। इफ़ यू विल सॉर्ट आउट सम इजी वे, देन आप पे कोई चीज़ इम्पोज की जाएगी। तो जितनी चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए रखेंगे उतना बेहतर होगा कि आपको अलाउ किया जाए कि आप उस तरह का प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो 4th में हम नॉर्मली आपको अलाउ करते हैं कि आप खुद अपना प्रोजेक्ट चूज़ करें और उसकी बेस पे आपकी ग्रेडिंग वगैरह की जाए। तो ये हमारा 4th प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अगेन जो लास्ट 2 ऑप्शन है उसको हम कोविड के परस्पेक्टिव से देख लेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि either these will be functional or not. And yeah, definitely, I'm definitely expecting that after 11th of January we will be in the classrooms, and then we can decide about those 2 activities later on. तो हम उसको लेके चलेंगे, लेकिन ये आपको अभी तक पूरे कोर्स का ग्लिम्स देने के लिए आपको चीज़ें समझाई गई हैं। सो summing up this previous discussion, जब आप इस 4th मंथ के सेमेस्टर से निकलेंगे, what will you have? अगर आप बड़े ही पार्टिसिपेटिव वे में इसको लेके चलते हो, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको लेके चलते हो, तो आई कैन प्रॉमिस दैट यू विल बी आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर विद 10 डिस्टिंक्ट स्किल्स। 10 स्किल्स होंगी, वो 10 की 10 स्किल्स मार्केटेबल होंगी। वो 10 स्किल्स 10 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और उन ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करने से मुतल्लिक होंगी। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करने की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सर्वाइवल की उसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग कोई स्किल होती हैं। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक डिज़ाइनिंग फर्म में किस तरह से प्रिवेल करना हो, मैं आपको कहता हूँ कि आपको डिज़ाइनिंग ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा आप किसी रिसर्च राइटिंग फर्म के अंदर अगर आपने प्रिवेल करना है और आपको राइटिंग ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं आपको राइटिंग सिखाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ कि जनाब आपने अमेज़ॉन पे या इस तरह किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के अंदर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑनलाइन ई कॉमर्स मीडियम के ऊपर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके कैसे बिहेव करना है, तो मैं आपको वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करना सिखाऊंगा। सो व्हेन यू विल बी आउट फ्रॉम दीज 4 मंथ्स तो आपके पास 10 डिफरेंट स्किल्स होंगी, एंड देन दोज 10 डिफरेंट स्किल्स आर कम्प्लीटली फ्री। इट ओनली मैटर्स कि आप कीन हैं उनको रिसीव करने के लिए कि नहीं, आप कीन हैं उनको अप्लाई करने के लिए कि नहीं, आप कीन हैं उसको साथ लेके चलने के लिए कि नहीं। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। जब आप इस सेमेस्टर से बाहर होंगे, योर पर्सनैलिटी, योर
confidence will be improved much in a better way. क्योंकि यहाँ पे आपको खामोश रहने की इजाज़त नहीं होगी, छुपने की इजाज़त नहीं होगी, स्पेशली व्हेन वी वर इन द क्लासरूम्स। हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ रोज़ हुआ करेंगी हर लेक्चर के बाद, ठीक है। यहाँ पे भी हमें शुरू करनी पड़ेंगी ऑनलाइन मीडियम के ऊपर भी। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना के, वर्किंग ग्रुप्स को बना के उसकी स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है, उसकी जैसी फाइनलाइज हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आप छुप नहीं सकेंगे। अगर आप में छुपने वाला एलिमेंट है, जो भी फियर्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम वो इनको रिजॉल्व कर लेंगे इसी पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और नंबर थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मतलब जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कोई थ्योरेटिकल थिंग्स हैं, आपको उन पर मुकम्मल ग्रिप होगी, नॉट फ्रॉम द थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव बट इन सच काइंड ऑफ परस्पेक्टिव कि आपको किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी वर्क सेटिंग के अंदर, अपनी होम सेटिंग के अंदर, अपनी टीम सेटिंग के अंदर, अपनी इंडिविजुअल सेटिंग के अंदर आप हर जगह जाके उनको अप्लाई कर सकते हो। आपको इस तरह की स्किल्स दी जाएंगी, आपको इस तरह से वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो दीज आर माई 3 मेन मोटिव्स। इस कोर्स में ग्रेड्स लेना बहुत आसान है। ग्रेड्स लेना इस तरह से आसान है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होकर इसको लेके चलेंगे, साथ साथ अपनी कंट्रीब्यूशन इंश्योर करेंगे, तो आपके लिए मार्क्स लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेपर वाले नाइट को कोर्स कंटेंट्स पढ़ के आप पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे तो आई कैन बेट कि आप साथ में बुक लेके अपने नोट्स लेके चले जाएं। यूनिवर्सिटी की तरफ से, नॉट यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी हर तरह के एक्सपेरिमेंट को अलाउ करती है जो कि प्रोडक्टिव हो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हमारा डिपार्टमेंट और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स भी। लेकिन उसके बावजूद हम एग्जामिनेशन हॉल के सिस्टम को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते। अदरवाइज अगर एग्जामिनेशन हॉल का सिस्टम का कॉम्प्लिकेट ना होता और आपको नोट्स ले जाने की भी इजाज़त होती, तो आप उन नोट्स को रट्टा लगा के पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। You have to be involved in all kind of these practical activities. You have to be involved with all kind of the movies which we will suggest you. You have to be involved in all kind of the skills which I'm gonna invest in you. So अगर आप उनके साथ इंटरेक्टेड रहेंगे तब आप पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे। अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ रट्टा लगा कर लेंगे तो वो नहीं होएगा। सो दिस इज अबाउट द समिंग अप कि आपके पास किस किस तरह की स्किल्स आएंगी इस कोर्स के बाद। सो आई थिंक सो वी मस्ट मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट बेसिक लेक्चर, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कवर शुरू हो चुकी हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन पेंडिंग है, वो हमारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप में इंट्रैक्शन के थ्रू मेक श्योर हो जाएगा। सॉरी। नंबर थर्ड, मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे कोर्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे, लेक्चर्स की तरतीब किस तरह से होगी, मेजर एक्टिविटीज़ या मेजर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कुछ टेंटेटिव हैं, कुछ फिक्स हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी ही उनको अनाउंस कर देंगे। जैसे ही लेक्चर कल फिनिश होगा आपके पास आउटलाइन आ जाएगी पूरे के पूरे कोर्स की, ताकि आपको पता हो कि हम इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को करने जा रहे हैं, और यू विल बी मेंटली रेडी फॉर दैट। आई एम वेरी मच ओपन फॉर द सजेशंस फ्रॉम योर साइड, यू गाइस, ठीक है ना। आप किसी भी तरह के सजेशन दे सकते हैं इस फर्स्ट लेक्चर को सुनने के बाद भी। दोज सजेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन योर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। जो आपको डेफिशिएंसीज लग रही हैं, जो आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स लग रही हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि 7th सेमेस्टर तक आते आते आप में से दूर हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी, बट दे आर स्टिल प्रिवेलिंग, यू कैन डिस्कस those with me and we can find out some kind of way कि किस तरीके से, क्या नाम है, हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का पार्ट बना सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से कैसे रिलेट करके आपको वो चीज़ें सिखा सकते हैं, ताकि आपको वो कोई ना कोई वो जो भी डेफिशिएंसीज थे हम उसको कवर कर लें। इट्स नॉट अबाउट कि जो आपको प्रीवियस 6 सेमेस्टर के अंदर चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं बहुत अमेजिंग टीचर्स की तरफ से, उनमें कोई भी डेफिशिएंसी थी। इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हमेशा रह जाती हैं सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। जब आपके पास 4 मंथ्स होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, और योर मेजर फोकस इज टू गेट थ्रू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर, तो हम बहुत सी जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिस कर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उस तरह का कोर्स है जहाँ पे आप उन चीज़ों को, उन तमाम के तमाम डेफिशिएंसीज को ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनको कवर कैसे करना है, उनके साथ कॉप अप कैसे करना है, उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो आई विल डेफिनेटली बी वेटिंग ऑफ योर सजेशंस। आप वो सजेशंस दीजिए, और उन सजेशंस को हम किसी तरीके से ओबी का अगर पार्ट बन सकती हुई, ओबी के साथ रिलेट कर सकती हुई, अगर आपकी तरफ से म्यूचुअल कंसेंसस हुआ तो हम उसको पार्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट का, ताकि आप उन वीकनेसेस को, उन डेफिशिएंसीज को कवर कर लिया जाए जो कि अभी तक प्रिवेल कर रही हैं, क्योंकि यू विल बी ग्रेजुएटेड सून एंड पीपल विल असेस यू अस बेसिकली ऑन योर परफॉर्मेंस। कोई ये नहीं कहेगा कि उस्मान तारिक भट्टी अगर अच्छे टीचर हैं या बुरे टीचर हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो खुद इस्लाम बताते हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं तो ये करते हैं। जब हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली वांट टू शेयर वन थिंग विद यू। अपने इस कोर्स को प्रैक्टिकल बनाने का मकसद ये है कि
हम आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए रेडी ना करें, हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपको अपने बिजनेसेस के लिए रेडी करें, बिकॉज व्हेन यू विल गो इन द जॉब मार्केट यू विल रियलाइज दैट मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड. Market is pretty much damn saturated and there will be no space for you guys, because the people who have already done MBA almost 3 to 4 years ago, they are still looking for the jobs. Many of you still want to do the government jobs because probably those are very much secure, those have best future incentives. That can be right, that can be absolutely right, you can go for them. But what I personally believe that most of you guys must go towards establishing your own ventures, just like your seniors who have started very amazing small ventures and they are growing with each day. Like one of your senior has started a cosmetic company named as Familush. He is now expanding those businesses in some kind of other. The Familush was probably a herbal cosmetic company. Now he is taking it to the normal cosmetic company too. So basically, they are expanding. One of your senior has made a fashion designing clothes with the Z Studios name, and they are working absolutely fine in those. One of our student has started a gem store type thing in which they are importing the shoes from Dubai and selling it. So means we are very much proud of them. They are our assets because society will assess us on the basis of their performance, on the basis of their progress. And if all of you guys will not take a keen interest in this kind of interesting course, then the problem is society will gonna judge us on that poor performance. So I will not let you guys to categorize us as a bad. So when you will be graduated, I want you to invest all your skills in the best way, and that's why those skills are gonna be learned to you in this particular semester. Anyhow, coming towards our course. Our course is named as organizational behavior. So we have two distinct words, organization and behavior. Let's talk about organization. BBA के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक हम ये सुनते आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, for the betterment of a profit, for increment the profit, for increment the performance, anything. ये वो डेफिनेशन है जो कि वाकई ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है, बट दिस डेफिनेशन गॉट्स टू मच टिपिकल ना. ठीक है ना. टिपिकल क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी अपनी कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं. रिसर्च ट्यूटर कॉम की है, राइटर स्पॉट की. हमारे पास डिफरेंट राइटर्स होते हैं. रिसर्च राइटर्स होते हैं जो कि एमफिल स्कॉलर्स या समहाउ पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स भी होते हैं, आप जैसे भी होते हैं. दे आर टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 80,000 सैलरी इन अ मंथ. लेकिन मैंने उनको बहुत से राइटर्स को कभी देखा भी नहीं होता. आई एम ऑपरेटिंग दैट बिजनेस फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 years नाउ, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं, कोई प्लेस नहीं है. ठीक है ना. सबसे पहला जो कंसर्न है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस where two or more than two people interact. सबसे पहले प्लेस पे बात कर लेते हैं कि either there is always a place. नहीं है. My business generates revenue of almost couple of millions or couple of thrice of millions in a month, लेकिन उसकी कोई प्लेस नहीं है. आज तो वो कंप्लीटली एक ऑनलाइन पैटर्न पे वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है. सो देयर इज नॉट अ प्लेस वेयर माय राइटर्स आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. They are doing their individual projects. There is no place at all where they can interact. Yeah, there can be some kind of group projects where we interact or combine different researchers or different writers to do a certain thing, but there is no place here. So what kind of modern definition term can replace that place thing? ठीक है ना. Organization is a place. It is better when we can say that organization is a setting. That setting can either be physical, that setting can either be virtual, that setting can either be completely online. ठीक है ना. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी अ प्लेस. ठीक है ना. उसको प्लेस कहना, उसको एक फिजिकल एक उसके ऊपर स्टैंप लगा देना, दैट इज नॉट राइट एट ऑल. ठीक है ना. क्योंकि नहीं है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन ऑपरेट हो रही होती हैं. आप शॉपिंग करते हैं, आपको आपसे बेहतर किस चीज़ को आइडिया होता है कि बहुत सी ब्रांड्स ने अपने स्टोर नहीं बनाए होते, वो कंप्लीटली ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. वो कहते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमें एक स्टोर बनाने में करनी थी, हम उतनी इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्ट को या अपने मार्केटिंग टूल्स को बेहतर बनाने में कर लेते हैं. लेट्स सपोज आपने घर बनाना है. घर बनाने के लिए आपको एक कनाल का घर बनाने के लिए आपको 3 करोड़ रुपए तो चाहिए होगा. वो कहते हैं यार रेंट पे रह लेते हैं, हम वो सारा पैसा बिजनेस में फेंकते हैं, बिजनेस को उस तरह से नॉरिश कर लेते हैं. जस्ट गिविंग एन आइडिया. ठीक है ना. दैट इज माइट नॉट बी एंड नथिंग कैन बी बेटर देन योर ओन हाउस. ठीक है ना. इससे बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं होती लाइफ के अंदर. सो डू गो फॉर दैट व्हेन एवर यू गेट द चांस. एनी हाउ, कमिंग बैक टू वर्ड्स, place is not a necessary thing right now for the business. A business can totally be operated on a platform. My business, research.com and WriterSpot, those two research firms are totally operating online. They just have their Facebook pages.
We attract our clients from there. We attract our clients from different marketing tools. We bring our clients on those particular platforms. We contact them directly on WhatsApp, and we are getting business. Why this kind of medium was chosen? Because it needs zero investment. It was totally an intellectual capital business. It doesn't need any kind of monetary capital. It was totally based on skills. It was totally based on dedication. It was not based on monetary investment, and still it is like huge in terms of profit. कोई मुझसे पूछता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस की सक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों की तरफ नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. लाइक जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट एट स्पॉट कंपनी स्टार्ट की थी, तो डैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ नोट 3 मोबाइल. सैमसंग का नोट 3 मोबाइल था, वहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी. आज मेरे पास गलेक्सी Z Fold 2 मोबाइल है. ह्यूज डिफरेंस. कि आप नोट 3 से गलेक्सी Z Fold 2 तक पहुंच गए, मीन्स योर बिजनेस हैज़ अंडर लॉट समथिंग लाइक दैट. जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास जो गाड़ी थी वो स्विफ्ट थी, सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी थी. आज जो कार्स हैं वो दो हैं, सिविक एंड यारिस, दो डिफरेंट कार्स हैं, ठीक है. आई ओन दैम. So it means that business doesn't need investment sometimes. Business doesn't need place sometimes. Business need better ideas at most of the times. बिजनेस को आइडियाज चाहिए होते हैं, ठीक है ना. आइडिया चाहिए होता है, एक कंफर्टेबल बिजनेस मॉडल चाहिए होता है, वो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरली नॉट अ प्लेस anymore. Organization is a setting that can also be virtual, just like many online companies, not just research.com, not just right at spot, not just one down sports apparel. There can be countless companies. Currently a brand of previous days there was an engagement function in the family and I got to wear a two piece. तो हमारे साइज की जो शर्ट्स होती हैं वो मुश्किल से मिलती हैं हेल्दी पर्सनस की. तो वो एक कंपनी आई हुई है ब्रिस्क के नाम से, तो दे टोटली प्रोवाइड कस्टमाइज शर्ट्स. तो I just wanted to see their store, that if there is any store that I can get it quickly basically, but that company has not any store. वो completely virtual कंपनी है. आपने कस्टमाइज अपना फैब्रिक उनको बताना है, उनको डिज़ाइन वगैरह बताना है, सब चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे. सो देयर इज नेसेसरली नॉट अ प्लेस. Organization is a setting that can also be virtual. Okay, now coming towards where two or more than two people, we are talking about the participants here. You have learned the term of sole proprietorship, जिसमें एक बंदा ही सारे काम कर रहा होता है और वो हर चीज़ खुद कर लेता है. आपके मोहल्ले का शॉपकीपर होगा, किसी कपड़े की दुकान का ऑनर होगा, ठीक है ना. किसी जगह पे कोई खरादिया होगा जो कि खराद मशीन पे बैठ के काम कर रहा है. किसी जगह पे कोई CNC मशीन का ऑपरेटर होगा जो CNC मशीन ऑपरेट कर रहा है. किसी जगह कोई किताबों वाली दुकान होगी. क्या वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना. उसने एक बंदा रखा होगा, अपना हेल्पर रखा होगा, दो पीपल हो गए, ठीक है ना. बात वो अकेला भी बैठा होता है, लेकिन दे आर स्टिल परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट या व्हाई वी ऑलवेज स्ट्रेस ऑन टू और मोर देन टू पीपल? बिकॉज this definition also applies on the partnership. This definition also applies on the company. क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे आपने कोई कंपनी लॉ का पढ़ा हुआ है, कोर्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप की कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या होती हैं. उसमें भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए. कंपनी क्या होता है जनाब, प्राइवेट कंपनी में इतने मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए इतने मेंबर्स होने चाहिए, सारी चीज़ें. सो ये जो डेफिनेशन का पार्ट है, टू और मोर देन टू पीपल, ये एक फॉर्मल कंपनी और फॉर्मल पार्टनरशिप से अराइज करता है कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है ना. सो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ठीक है ना. देयर कैन बी क्वेश्चन मार्क. आई एम नॉट एग्री विद दैट. मेरे ख्याल से उनको भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस हासिल होना चाहिए, चाहे उनके बस एक बंदा मिलकर किसी एक गोल के लिए काम कर रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन? मेरा अपना पर्सपेक्टिव है. लेकिन या जब सारे रिसर्चर्स कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं कि टू और मोर देन टू पीपल, सो